Hi friends, this is Kapil. I'm making this channel or this YouTube video on 498A dowry cases and so on. And the reason why I'm doing it is because I've seen a lot of people approach me, um, my friends from IIT and my friends from my business school and from my work and so on, who have been facing these cases when it comes to dowry cases in India and also domestic violence and so on. The first thing is that a lot of these cases are actually true. So there is a lot of domestic violence against women which happen in India. At the same time, what's true is that there are a lot of false cases, as it happened with me a couple of years back. Didn't impact me much, but it wasted a couple of years for me because you are in a set married life and then somehow suddenly you face these kinds of issues. So it's more of an operational hassle for you. So you wake up in the morning, you want to go to work, you go to work, you do your work, but at the same time, you have to talk to your lawyer and so on. So it wastes your time, which is super precious. So I got through these cases in 2018 very successfully, actually. But at the same time, I had to, as I said, waste a lot of time, and I still get people keep calling me for advice, and I give a lot of advice to people whenever I find time. But then I decided that I'll make this channel. Why? Because I don't want to repeat myself. I do not want to give the same advice again and again to people. एक ही बात को 10 लोगों को बताने की बजाय मैं एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ जहाँ पर आप अपने मेरे वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं. Videos will be in mixture of it'll be mixture of English and Hindi. I can also do it in Punjabi, but I don't see any reason if I'm doing it in Hindi. I can You can very well understand. Um, so the first thing is about advice. So a lot of people take my advice, and a lot of people take advice of people who are much more educated about these topics. सो देर इज लॉट ऑफ एडवाइस. मार्केट में इतनी एडवाइस है कि आप 10 लोगों से पूछेंगे इन केसेस के बारे में, वो आपको 10 अलग अलग कानून बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे. बट प्रॉब्लम ये आती है कि उसको फॉलो करने में दिक्कत है, बिकॉज आपका फैमिली का प्रेशर होगा, आपके फैमिली वालों में आपके पेरेंट्स अलग, उनकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस होगा, आपका अलग थॉट प्रोसेस होगा एंड सो ऑन. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू कन्विंस योर ओन फैमिली मेम्बर्स, राइट? And sometimes you are just not able to make a decision because you have 5 or 10 people giving you a lot of different advices. Now, what happened in my case was that my cases actually started late 2014, post Diwali, and early 2015. And um, and I was married in 2011, so I had a marriage of about, let's say, 3.5 years or so, give and take. And early 2015, the cases started to pick up. My ex, obviously, she is an Indian. She is from UP somewhere, and she threatened that she will file some cases. I live in Europe. I live a very comfortable life, um, and and what happened then was that, and I'll not go into the details of what kind of cases were filed against me because that's immaterial. I took advice of a very close friend of mine who happens to be a SSP in UP Police. So just for your background, मेरी पढ़ाई IIT रुड़की से हुई है, जहाँ से बहुत सारे IAS IPS अफसर निकलते हैं. तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो IAS IPS IFS हैं, जो मेरे हॉस्टल में थे, मेरे साथ थे, अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, घनिष्ठ मित्र हैं. तो उनसे मैंने एडवाइस ली 2015 स्टार्टिंग में. तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि भाई कपिल, ऐसा है, जो लड़की या जो पति या जो पत्नी एक बार थाने में पहुंच जाते हैं, उस मैरिड केस का चलना बहुत मुश्किल है. दिस इज माई एक्सपीरियंस, और मैं ऐसे हजारों केस रोज देखता हूँ. सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ वेदर यू वॉन्ट्स टू कीप हर और नॉट. एंड बाय दैट टाइम आई हैड मेड अ डिसीजन that this marriage was not going to work. Now, I made that decision in December 2014 mentally. And 2015 early, I got this very sound advice by a very senior police officer from the same state from where my wife was.
or my ex-wife was. And I ignored the advice. Well, I took the advice and I was about to follow the advice. The advice was that I should file, and this is very important. You should listen to this and you should think about it. The person who files the case first will have an upper hand. तो मुझे एडवाइस फरवरी 2015 में मिली कि आप तलाक का केस फाइल कर दें, और जैसा मैंने आपको बताया एडवाइस बहुत सीनियर आदमी से थी. वकीलों ने अपनी अपनी एडवाइस दी. कोई वकील कह रहा है कि आप केस मत करें, कोई कह रहा है कर दो, कोई कह रहा है महिला आयोग में चले जाओ, ये वो. तो बात ये हुई कि मार्च में मेरा बर्थडे होता है, तो मैं मार्च में इंडिया आता हूँ. तो मार्च 2015 में मैं होली के बाद में अपने पेरेंट्स से मिलने गया हिंदुस्तान. तो मैंने वहाँ पर मुंबई में लोकल वकील से एक दो से बात की. तो समहाउ हम लोग ये डिसीजन नहीं कर पाए कि हमें तलाक लगाना है. हालांकि मैंने कागज़ तैयार कर लिए थे, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करना, अपनी फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करना, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन. दे वांट योर लाइफ टू बी perfect life, right? So it's very difficult decision from an Indian society perspective. तो हमने एक joint decision लिया कि अभी wait करो. फैमिली डिसीजन था कि भाई अभी एक बार इंतज़ार करो और उसके बाद में लेट्स सी कि सामने वाली पार्टी क्या करती है. सामने वाली पार्टी was making all those UP kind of things. They were this is very typical in Uttar Pradesh, which is if your ex happens to be from Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, one of these poor states, good luck to you, because here they believe in these are just very poor states and they don't know, it's very uncultured. I mean, other than some religious places, these places are very uncultured, poor, backward. I have a lot of good friends from UP Bihar who studied at IIT, but still the mentality even amongst the educated people is not very forward looking if you compare to the other states like Punjab or Haryana and so on. Now, what is most important is for you to know that you will get a lot of advice, but you will ignore a lot of advice. You will waste time in not following up on advice because you will not be mentally strong, or you will not be able to convince your family members. In my case, the good thing was that I was very mentally strong. I was enjoying my life. I was doing, yoga and meditation, my regular stuff. So nothing really changed in my life after she left. Other than my time talking to my family and talking to the lawyers, which was a waste of time. So there are three elements. So the first element is the legal element. So you have to face legal element. So there will be lawyers and cases, court cases, etc. The second is the psychological element. And the third is more the operational headache. Operational headache क्या है कि आपको वकील को 5,000 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, उसमें आपका टाइम जाएगा. साइकोलॉजिकल क्या है कि आपको ये लगता रहेगा या आपकी फैमिली मेम्बर्स को ये लग सकता है कि भाई हमने क्या गलती कर दी थी जी, ये क्या केस कर दिया. उसमें कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे मेरी FIR में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि इस तरह से गलत सेक्स करता था एंड ऑल दैट. और केस की डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं. बेसिकली 3 चीज़ें हैं, लीगल, ऑपरेशनल और साइकोलॉजिकल. और लीगल और ऑपरेशनल आप मैनेज कर लोगे. और मार्केट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मटेरियल बहुत सारा है. लेकिन जो साइकोलॉजिकल पार्ट है वो आपको सही रखना है. मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ आपकी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. और थैंकफुली क्या है, 2014 से पहले भी मैं अपने ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ. सुबह ओम बोलना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ये मेरी रेगुलर लाइफ का पार्ट है. तो मुझे 2015 में कुछ इफेक्ट लगा नहीं कि भाई ये कुछ हुआ है, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ. तो मैं आपके लिए एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ इस पूरे चैनल के माध्यम से कि आप लीगली और ऑपरेशनली तो स्ट्रांग रहो ही. ऑपरेशनली स्ट्रांग रहने के लिए आपको कैश फ्लो अपना प्रॉपर रखना पड़ेगा. जैसे मेरी नौकरी यूरोप में है, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. पैसा यूरो में आता था, वकील के पास जाना है 10-15 हज़ार रुपये चला जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी. लीगली भी कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं थी. मेरे कुछ वकील चेंज करने पड़े और वो पापा मैनेज कर लेते थे. और साइकोलॉजिकली भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरी जैसे मैंने आपको बताया, मेरी ऐसी कंटिन्यूएशन में मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा शॉक लगा नहीं कि भाई शी इज़ लेफ्ट.
तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से या इस पूरे केस को किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो एक एमबीए में या एक बिजनेस स्कूल्स में या बिजनेस में यूएस में, यूरोप में स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, कहते हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी के कुछ पहलू हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला है गेम। मैं ये सारा आपको उसमें टेक्स्ट में लिखूंगा वीडियो में कि गेम क्या होता है। गेम अंग्रेजी में अगर बताया जाए तो इट्स एनी सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट हैज अ रिजल्ट डिपेंडेंट ऑन द एक्शंस ऑफ टू और मोर डिसीजन मेकर्स। यहाँ पर ये है कि ये एक खेल है, इसको एक खेल की तरह देखो, और इस खेल में बहुत सारे डिसीजन मेकर हैं। वकील भी है और जज भी है, पुलिस वाले भी हैं, लड़की पक्ष भी है, लड़का पक्ष भी है, और लड़का पक्ष के अलावा हर इंसान को पैसा चाहिए। तो ये एक खेल है जिस खेल में, जैसे कबड्डी का खेल है उसमें 11-11 हैं अगर मान लो, या 7-7 आमने सामने है, या क्रिकेट का खेल है जिसमें 11 और 11 हैं आमने सामने। ये एक ऐसा खेल है जिसमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लड़का पक्ष वर्सेस एवरीबडी एल्स, एंड एवरीबडी एल्स इज लॉयर्स और जज। अगर वो छोटा जज है, यूपी में बहुत करप्शन है लोकल कोर्ट्स में, और पुलिस, ये सब एक साथ मिले हुए हैं। तो बेसिकली आपका ये एक गेम है जिसमें द सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, इट्स अ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जैसा मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, दैट हैज अ रिजल्ट डिपेंडेंट ऑन द एक्शंस ऑफ टू और मोर डिसीजन मेकर्स। आप क्या एक्शन लेते हो और सामने वाली पार्टी क्या एक्शन लेती है, उससे खेल का नतीजा तय होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये गेम कौन सा है। दूसरी चीज़ प्लेयर्स कौन से हैं, मैंने आपको बता दिया। प्लेयर्स इसमें बहुत सारे हैं, आपको लिखने पड़ेंगे कागज़ पे कि कौन कौन इसमें प्लेयर हैं। उसमें आपके प्लेयर आपके दामाद हो सकते हैं परिवार के, या कोई इन लॉज फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है प्लेयर। स्ट्रैटेजी क्या है, आपको पहले से तय कर लेना आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, और इसमें स्ट्रैटेजी में कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी तो 4 लाइन की थी, मैं अभी आपको वो भी बता दूंगा। पे ऑफ क्या है, जैसे मेरा तो बहुत क्लियर था कि भाई इसमें, अच्छा पे ऑफ की डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, द पे आउट अ प्लेयर रिसीव्स फ्रॉम अराइविंग एट अ पर्टिकुलर आउटकम, कि जब ये खेल खत्म होगा तो कितना पैसा मिलेगा या क्या नतीजा मिलेगा। तो पे आउट पहला गेम, दूसरा प्लेयर्स, तीसरा स्ट्रेटजी, चौथा पे ऑफ, पांचवा इंफॉर्मेशन सेट, कि इसकी जो डेफिनेशन है उसमें है कि द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट अ गिवन पॉइंट इन द गेम। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास 2014 में थी, 2015 में थी, 2016 में थी, 17 में थी, वो अलग अलग थी। कई बार क्या है, लोग प्राइवेट जासूस लगा करके इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ानी है अपनी, ताकि आपको पता हो कि सामने वाले के ऊपर क्या दबाव है। जैसे मेरे वाले केस में सामने वाली पार्टी जो थी उसमें उसके जो फादर थे लड़की के, वो सरकारी नौकरी में थे। तो अगर आपको उसके दफ्तर में कोई ऐसा व्यक्ति जानता है जो आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे कि उसकी साले की वहां पर क्या स्थिति है, इफ somebody can give you that kind of information, that is very valuable. So the information, जैसी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं मैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट एनी गिवन पॉइंट इन द गेम। ये मत समझो कि जो इंफॉर्मेशन 2014 में थी वो 2015 में रेलिवेंट है, नहीं। इंफॉर्मेशन को अपडेट करो, सामने वाली पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन को अपडेट करो, कि सामने वाली पार्टी जैसे कई बार लड़कियां केस कर देती हैं मेंटेनेंस का, तो आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी को पैसे देकर या आप खुद अपने एफर्ट से ये पता लगाओ कि ये कहीं नौकरी कर रही है, ये किसी और लड़के से मिल रही है। इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बहुत लफड़ा है, और यूरोप में भी है, हर जगह है। इंडिया में अभी कुछ फेमिनिज्म और इन सब कारणों की वजह से कुछ ज़्यादा है। तो पांचवा है इंफॉर्मेशन सेट, और छठा है इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा टेक्निकल मतलब है। द पॉइंट इन गेम वेयर बोथ प्लेयर्स हैव मेड देयर डिसीजंस एंड आउटकम इज रीच्ड। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, ये सोचने की बात है कि आपने डिसीजन किस पॉइंट पर लिया, आप अपने डिसीजन कब कब चेंज कर रहे हो। जैसे मेरा ये बहुत क्लियर डिसीजन था कि भाई इसमें पैसा इंपॉर्टेंट, पैसा पहली बात तो मैं देने वाला नहीं, ठीक है। अपनी हेल्थ पर कंटिन्यूस वैसा ही ध्यान रहेगा, अपनी फैमिली की, पेरेंट्स की, आसपास के जितने लोग हैं, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, अपना उसमें कोई चेंज नहीं करना है।
तो डिसीजन था कि भाई इसको तलाक देना है और अपनी टर्म्स पे देना है। और अपनी टर्म्स भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियोस में कि क्या वो टर्म्स थी। और मेरा केस उन बहुत रेयर केसेस में है जहाँ पे लड़के पक्ष की लोकेशन पे तलाक होता है। जैसे हमारा लोकेशन पंजाब है और केसेस फाइल हुए यूपी में, लड़की यूपी की थी, लड़की के पेरेंट्स यूपी में थे। तो मेरी एक कंडीशन थी कि मेरी इज्जत बहुत प्यारी है मुझे इस केस में। You should always make a rational decision. So at some point you have to back out. But in this case, I was very clear that the other party is very weak. Not only in their case, but also in their mental setup. तो आपको ये पता लगाना है कि सामने वाली पार्टी की मानसिक स्थिति क्या है, क्या वो मजबूत है, क्या वो गिरे हुए हैं। और अगर आपकी मानसिक स्थिति और आपके घर वालों की मानसिक स्थिति स्ट्रांग है तो आपको इन केसेस में कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, पुलिस वाले भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। पुलिस वाले आधे खुद डरे हुए होते हैं। क्यों? पुलिस वालों को नौकरी परमानेंट है। मान लो एक केस में वो ₹1,00,000 कमा लेगा, 2 लाख रुपया कमा लेगा इधर उधर का, लेकिन अगर आपने उसको फंसा दिया केस में तो उसकी आगे की लाइफ की कमाई खत्म हो जाएगी। तो कोई भी पुलिस वाला जो परमानेंट नौकरी में है वो कभी भी ये गलती नहीं करता कि वो आपसे पैसे लेने की फिराक में या जोश में वो अपनी आगे की और केसेस की कमाई मार दे। अगर उसको पता चल जाए कि ये लड़का या लड़का पक्ष या कोई भी पार्टी कानूनी रूप से जाएंगे और ये कुछ भी गलत नहीं होने देंगे इस केस में, तो आपका केस बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज यू हैव वन बैटल। बिकॉज आई ऑल्सो वेंट वंस टू यूपी पुलिस स्टेशन जहाँ पे मेरा केस था, क्योंकि मेरे कुछ कागज ये लोग नहीं लगा रहे थे, तो मैंने उनसे कागज़ लगवाए। वो भी एक अलग कहानी है, मैं आपको बताऊंगा कि वो भी एक रेयर केस है कि एक कानून है जिसमें आप फोर्स कर सकते हो पुलिस को और कोर्ट को कि आप अपने एविडेंस कोर्ट में पेश हों। कई बार क्या है कि ये पुलिस वाले एविडेंस नहीं लगाते, तो उसका एक अलग सेक्शन है और आप उसको सेक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको ये 6 चीज़ें बताई जो इनके बारे में आपको सोचना है। गेम क्या है? Any set of circumstances that has a result dependent on the actions of 2 or more decision makers. 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी हैं, ये एक ऐसा खेल है। दूसरी बात, प्लेयर्स कौन कौन है उसको कागज पे लिखो कि इसमें खिलाड़ी कौन कौन है, सामने वाले वकील का नाम, अपने वकील का नाम। ये एक फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको। इससे आपको अगर एक कागज पे लिखोगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा क्या है। गेम, प्लेयर्स, स्ट्रेटजी, पे ऑफ। सामने वाली पार्टी को पैसा चाहिए, मुझसे 3.5 करोड़ रुपए मांगा था पुलिस वालों के थ्रू स्टार्टिंग में, तो भैया किस बात का पैसा देने। तो पे ऑफ क्या है, सामने वाली पार्टी का पे ऑफ क्या है, आपका पे ऑफ क्या है एंड में। इमोशनल हो सकता है पे ऑफ फाइनेंशियल हो सकता है, ये भी लिखो। इन्फॉर्मेशन सेट, जैसा मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन सेट एक गिवन पॉइंट पर है। ये मत सोचो कि 2013 में अगर वो आपसे अच्छा बिहेव कर रही थी तो इसका मतलब ये है कि वो 2014 में भी अच्छा बिहेव करेगी, 2015 में भी अच्छा बिहेव करेगी। आदमी चेंज होता है समय के साथ, तो इंफॉर्मेशन सेट भी चेंज होता है। इंफॉर्मेशन सेट में क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, कितनी जल्दी में है, लड़की की उम्र क्या है, ये सब सवाल हैं। तो इंफॉर्मेशन सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम आगे बात करें। तो बेसिकली ये 6 चीज़ें अगर आप एक बार कागज़ पे लिख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितने पानी में हो इन केसेस में। और इन केसेस में क्या है, कई बार लड़कों वालों की भी गलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही केस डीवी का 498A का जो है उसमें विक्टिम जो है वो लड़का पक्ष होता है। बट ऐसा पाया गया है कि पढ़े लिखे समाज में ऐसे अनकल्चर्ड लोग हैं जो ये फालतू के केसेस कर देते हैं लड़की पक्ष की तरफ से, एंड दे पे फॉर इट। तो जस्ट टू रीकैप, आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। मैं एंड में आपको एक टिप भी दूंगा कि मैंने ये वीडियो सीरीज इसलिए चालू की कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे एडवाइस मांगने के लिए। मैं वो सारी एडवाइस इस चैनल के थ्रू दूंगा, पहला। दूसरा पॉइंट है कि मुझे बहुत अच्छी एडवाइस मिली लेकिन मैंने उसको फॉलो नहीं किया। उसके कई कारण हो सकते हैं और मेरे लिए कारण बहुत वैलिड रीज़न थे, बिकॉज हमारा कलेक्टिव डिसीजन था।
और इतना मेरे अंदर लीगल नॉलेज नहीं था कि मैं डाइवोर्स अप्लाई कर पाऊँ। तो आपको ये देखना है कि आपको एडवाइस अच्छी मिल रही है पर आप उस पर एक्शन नहीं ले पाओगे। एडवाइस अच्छा मिलना, गीता में श्लोक बहुत हैं, पर उस पर एक्शन ले पाना और उसको रट लेना, दोनों में फ़र्क है। सो एडवाइस बहुत मिलेगी, फॉलो नहीं कर पाओगे। फॉलो न कर पाने के 3 कारण हो सकते हैं, लीगल, ऑपरेशनल और मेंटल या साइकोलॉजिकल। और लीगल और ऑपरेशनल आप झेल लोगे अगर आपके पास में थोड़ा बहुत पैसा है और आपको कोई 1-2 वकील जानते हैं। वकील बहुत सारे चोर होते हैं, तो थोड़ा बहुत आपका पैसा स्टार्टिंग में वेस्ट हो सकता है, लेकिन आपको सिस्टम धीरे धीरे समझ में आ सकता है। तो मैं लीगल और ऑपरेशनल पे बात नहीं करूँगा, साइकोलॉजिकल, कि आपको ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है, उसमें आपको पूरा आपकी स्ट्रैटेजी समझनी है। और ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कोई और नहीं बना सकता, ये आपकी अपनी स्थिति है, क्योंकि आपके केस में कितना दम है। मेरे केस में बहुत दम था, मेरे एविडेंसेस बहुत थे और ये सब। तो आपको अपना देखना है उस कि भाई इसमें गेम थ्योरी लगाओ, साइकोलॉजिकल मेंटल फ्रेम बनाने के लिए। तो उसमें 6 चीज़ें मैंने आपको बताई। डिफाइन द गेम, डिफाइन द प्लेयर्स, डिफाइन द स्ट्रैटेजी, डिफाइन द पे ऑफ, डिफाइन द इन्फॉर्मेशन सेट एंड डिफाइन द इक्विलिब्रियम। तो ये 6 डिफाइन करो, उसके बाद में मैं इसको आपको गेम थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है रियल लाइफ में वो भी आपको बताऊंगा। तो ये 6 चीज़ें हुई गेम थ्योरी की। अच्छा, अभी जाने से पहले यदि आपका कोई केस, अभी मैं आज का वीडियो बंद कर रहा हूँ, आगे आपको और वीडियोस डालता रहूँगा क्योंकि मेरे पास मटेरियल बहुत है। क्योंकि अगर कोई केस 4-5 साल चलता है तो उसमें मटेरियल बहुत आता है, उसमें नेगोशिएट करने वाले बहुत आए, नेगोशिएटर बीच में, उसमें वकील बहुत चेंज हुए, उसमें पुलिस वाले बहुत देखे मैंने। तो उसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई गई कि भाई इसमें इसके लड़की का पिता जो है सरकारी नौकरी में, इसकी पेंशन आने वाली है, इसका प्रमोशन आने वाला है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वकीलों के बारे में और बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल चीज़ों के बारे, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ना सोचें। आप ये सोचें कि आपको लड़की को रखना है नहीं रखना है, और ये 6 पैरामीटर जो मैंने बताया इसको कागज़ पे लिखें, उसमें डिफाइन करें कि आपके पास में कहाँ पर गैप है। बहुत मैंने फ़ोन कॉल जाते हैं मेरे पास, उनको कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी मैंने आपको उसमें 5वां पॉइंट बताया इन्फॉर्मेशन सेट, बहुत लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि लड़की क्या कर रही है जी आजकल। लड़की ने मेंटेनेंस का केस कर रखा है, आपने आज तक ये प्रयास ही नहीं किया पता करने का कि लड़की ने दूसरी शादी कर ली नहीं कर ली, लड़की ने का कोई बॉयफ्रेंड है नहीं है, लड़की का कोई नौकरी है नहीं है, लड़की का क्या है क्या नहीं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि लड़के बाहर हैं, NRIs आर स्टेइंग आउटसाइड, द गर्ल मैरीज द सेकेंड टाइम and she is also having a child from the second marriage, and the court cases are going on, and people have called me in such cases, and people didn't even know that the girl is having a child from the, or newborn child from the second marriage. तो इन्फॉर्मेशन सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स कौन से हैं, आप किन पे विश्वास कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनमें एक और चीज़ बताऊँ, इसमें एक और प्लेयर होता है। मैं आज का वीडियो एंड कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और इसको मैंने बहुत ही इजीली फॉलो किया था 2015 में। तो इन्होंने हमें बहुत महिला आयोग में बुलाया। महिला आयोग एक वुमेन कमीशन होता है, इट इज़ अ नॉन लीगल एंटिटी। महिला आयोग में अगर आपका कोई भी एविडेंस है, उसकी कोई मान्यता नहीं है, तो आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे वहाँ? आपको जाना नहीं चाहिए। आपको वहाँ पर अगर आप जाओ भी तो एक बार जा आओ, और आपको ये तैयार रहना है कि आप बस जाओ सुन लो, क्योंकि वो सब क्या है, कैमरा वैमरा लेकर आते हैं, वो कुछ कुछ बोलेगी, ये वो सब खेल है। तो तो वुमेन कमीशन को, कहीं का भी वुमेन कमीशन बता रहा हूँ मैं आपको, हिंदुस्तान का, आप कंप्लीटली इग्नोर करो वुमेन कमीशन को, तो वो भी एक प्लेयर हैं। तो ये आज की टिप है, फाइनल टिप, कि नेवर एवर appear in front of a women commission. If you have to appear, go there 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes and then say कि साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं और मेरे को जाना है, या फिर ये कहें कि मेरा काम है अभी और मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, मैं कभी नहीं गया, मैं वुमेन कमीशन कभी नहीं गया, मैं कोर्ट कभी नहीं गया, मेरे वारंट निकले हुए थे
और मेरे कुछ कुछ निकला हुआ था, क्या कहते हैं, डीवी का केस था, 498A का केस था, और बहुत सारे केसेस थे। मैं इंडिया जाता था, मैं 4-5 साल में जब तक ये केस चले तब तक कम से कम 10 बार इंडिया गया हूँ। और मैं उसके बाद, उससे पहले अपना इंडिया जाने का जो रेगुलर प्रक्रिया थी वही चलती रही। तो मैंने कोई चेंज नहीं किया अपने शेड्यूल में या अपनी लाइफ में इन केसेस की वजह से। तो जैसे मैं होली पे जाता था, दिवाली पे जाता था, अपने बर्थडे पे जाता था, तो वैसा ही करता था। आपको आइडेंटिफाई करना है प्लेयर्स में कि कौन सा इन्फ्लुएंशियल है प्लेयर और कौन सा इन्फ्लुएंशियल नहीं है। जैसे लोकल कोर्ट बहुत इन्फ्लुएंशियल, लोकल कोर्ट वाला कुछ भी लिख देगा कचरा तो वो इन्फ्लुएंशियल है। वुमेन कमीशन वाला कुछ भी लिख देगा वो इन्फ्लुएंशियल है ही नहीं, वो लीगली वैलिड ही नहीं है। पुलिस वाला कुछ भी लिख देगा वो वैलिड ही नहीं है लीगली। तो उसमें क्योंकि क्या है, 90% केसेस में वो जांच करते हैं, वो लोग लड़की पक्ष में कुछ ना कुछ लिख देते हैं, पुलिस वाले कोर्ट में जमा कर देते हैं। तो अगर आप प्लेयर्स देखो, कानूनी प्लेयर्स, तो लोकल जज है, हाई कोर्ट का जज है, वकील हैं, पुलिस वाला है और वुमेन कमीशन है। वुमेन कमीशन और पुलिस को तो आप कंप्लीटली इग्नोर कर दो। उनको कभी भी आपका उनके फ़ोन आए आपके पास तो बहुत लोग घबरा जाते हैं। मेरे पास कई फ़ोन आए जो मेरे साथी मित्र हैं जिस पे केस हुआ कि भाई हमें तो जी वो थाने से फ़ोन कर लिया। वो पढ़े लिखे लोग और सारी ज़िंदगी इज्जत की ज़िंदगी जी है, कभी कोई गलत काम किया नहीं, अचानक फ़ोन थाने से आ जाए, आदमी घबरा जाए। घबराना नहीं। क्योंकि तो मैं भी अपने दोस्तों को ये बताता हूँ कि यार जब थाने वाले का फ़ोन आए तो उसको बोलो कि भैया कुछ लिखित में दे दो, उस पर मोहर लगी होनी चाहिए थाने की, उस पर थाने वालों के साइन होने चाहिए। और नहीं है तो कागज़ को फाड़ करके कचरे में फेंक दो। तो ये है। तो लीगल स्टैंडिंग जो है वो पुलिस वालों की बहुत वीक है, बिकॉज दे ऑलवेज they in most cases file a charge sheet against you. And so the point is you need to understand who's important, who's not important, and where you have to submit your documents. So the initial process always revolves around police and women commission. After that the process goes to the lower court and the high court. So the game of lower court and high court is played differently. The game at the police and the women commission is played differently. वुमेन कमीशन और पुलिस को तो आप ये समझ लो कि ये गली का कुत्ता है, भागोगे तो पीछे पड़ेगा, और रुक के थप्पड़ मारोगे या रुक के उसको साले को पत्थर दिखाओगे तो वो भाग जाएंगे। ये ध्यान रखो कि हमेशा सामने वाली पार्टी से या किसी भी व्यक्ति से इज्जत से बात करो, अपने को किसी गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। तुमने केस किए हैं, तुमने अपना टाइम और इज्जत बेकार की है मार्केट में, तो उसका खामियाजा आप भुगतो। तो कहने का मतलब ये है कि वुमेन कमीशन, पुलिस, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि फिर वही बात कि एडवाइस के दो हिस्से हैं। एडवाइस बहुत सारी है मार्केट में, बहुत अच्छी एडवाइस मार्केट में, आदमी फॉलो नहीं कर पाता है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप वो कारण ढूंढो कि आप मेरी एडवाइस फॉलो क्यों नहीं कर पाओगे। और मैं आपको एक कारण बता रहा हूँ कि मेरी एडवाइस आप इसलिए फॉलो करो क्योंकि मेरे ऊपर वारंट निकले हुए थे, मैं आज तक कभी कोर्ट नहीं गया। मेरे ऊपर डीवी का केस था और बलात्कार का केस करने की कोशिश की थाने में, और उसमें लिखा हुआ था जो उनकी रिपोर्ट वगैरह होती है, और जैसी मेरी कंडीशन थी, और मैंने पैसे भी बहुत कम दिए। स्टार्टिंग तो हुई थी करीब 3-3.5 करोड़ से, जो पुलिस वाले ने हमें बताया, और उसके बाद मैंने इसको कुछ पैसा नहीं दिया, जो पैसा था इन्हीं का था, शादी वादी पर जो भी लगा हुआ था। तो जो भी कानूनी था काम हमने वो किया है बिल्कुल एंड तक। तो मैंने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाया। क्यों लगाऊं? केस मैंने तो किए नहीं, जिसने केस किया वो खर्चा करेगा। बट एनीवे, so I don't want to digress, but I want to tell you that women commission and police have a much lower importance, because whatever they are doing is not valid in the courts, and you have to be very careful in the courts and very active in the courts. सो लोअर कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा होता है हाई कोर्ट जाने में, लेकिन आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, और आप अपने क्वेश्चन पूछो मुझसे और फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, एंड देन we'll डील एज वी गो अलोंग।
तो आज आधे घंटे का वीडियो हो गया है, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो अभी मुझे खाना है, डिनर करना है, थोड़ा लेट हो गया है। पर मैंने आज अपनी प्रोसेस चालू कर दी। मैं अभी अपना जितना आपको एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। 2018 का ये में केस ख़त्म हुआ था। 2011 में मेरी एक्स वाइफ से शादी हुई। उसके बाद में 2014 में भागी। 2015 में उन्होंने केसेस चालू किए। मैं आपको केसेस की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा बिकॉज दैट्स इररिलेवेंट टू यू। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप किस तरह से सामने वाले की कमर तोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो और इज्जत बहुत ज़रूरी है। अब बहुत लड़के ये हमें इज्जत अपनी प्यारी है, क्यों, मेहनत करके कमाई करी है, तो इज्जत शान से रहो। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं। मैं हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हूँ, बीटेक किया है। और मैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े एमबीए कॉलेज में रैंक होल्डर रहा हूँ, नंबर 1। तो मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक है, मेरी नौकरी भी बढ़िया है, यहाँ भगवान की दया है, पेरेंट्स की दया है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो मेरा ये था कि बॉस, हमने तो आज तक हार देखी नहीं, तो ये कौन सी खेत की मूली है जिसने हम पर केस कर दी। तो again, you need to strategize. You need to make sure that you don't give undue importance to women commission and police. You should give importance to the lower court and to the high court. And if you have questions, you can post. If you have comments, you can post. And yes, so that is the half an hour today. I would be more than happy to actually answer very specific questions because that will generate more content for me, right? But yes, you should also look at the videos of because what happened, I'll tell you. One of my juniors committed suicide. He was from IIT. I don't know, many people say that he was killed. I'll not tell you his name, but it came in Times of India and so on. And he had some marital problem, so some marital issues going on. And the thing is that if एक उपनिषद में, मैं आपको वो श्लोक भी, उपनिषद का एक श्लोक है, वो आपको इस पूरी जर्नी में बहुत काम करेगा। उपनिषद के श्लोक का मतलब ये है कि हर इंसान दो समरूपीय, सिमिलरली लुकिंग पैरट्स की तरह है जो पेड़ पर बैठे हैं। So every person is like two similar looking birds which is sitting on both the birds are sitting on a tree. One is going through the cycles of pain and pleasure. The other is watching the first bird. So you become the first bird going through cycles of pain and pleasure. You should always think that you are the second bird which is the observer. तो हमारे अंदर दो इंसान हैं। मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उपनिषद में बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है ये, आप उसको पढ़ें। अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी केस हुआ है। मैं आपको अपने जूनियर का भी केस बता रहा हूँ। मेंटल स्ट्रेंथ इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा वगैरह सब सेकेंडरी है। ये रिलेशनशिप वगैरह, मार्केट में पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 350 करोड़ फीमेल हैं। तो क्या आप ये बताओ कि आपको 350 करोड़ में कोई और लड़की नहीं मिलेगी शादी करने के लिए? 350 करोड़। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा एक ऑब्जर्वर की तरह देखो। आपको अंडरस्टैंड करना है कि गेम क्या है, और आपको ये भी अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना है कि आप कौन से पेन और प्लेजर से गुजर रहे हो। अगर आप उस प्लेजर और पेन से एसोसिएट करोगे अपने आप को, ये उपनिषद में लिखा है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है, तो आप घाटे में रहोगे। फिर आप कोई भी गलत स्टेप लोगे, फिर आप अपने परिवार वालों को भी दिक्कत में लाओगे, और आप अपने आप को भी परेशानी में लाओगे। मैं आपको बताऊं, ये जब केसेस चल रहे थे सब, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ में इटली घूमा हूँ, नेदरलैंड्स घूमा हूँ, जर्मनी में कई शहर घूमा। मैं अपने पेरेंट्स को रोम ले गया, मैं अपने पेरेंट्स को ड्रेसडन ले गया, मैं अपने पेरेंट्स को एम्स्टर्डम ले गया, पेरिस ले गया, फ्रांस ले गया। तो बढ़िया घूमे हम।
और बिल्कुल निश्चिंत होकर घूमे, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में स्ट्रेटजी पता थी, कॉन्फिडेंस था। मेंटल हेल्थ पूरे परिवार की बिल्कुल बढ़िया थी और फिजिकल हेल्थ भी बढ़िया थी। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पूरे परिवार की, एज a man, it is your responsibility to take care of your own mental and physical health, and also to take care of both the things of your parents, people near you, of your friends and so on. तो मैं आजकल बहुत बिजी रहता हूँ, ऑफिस का काम ये वो, पर मेरे पास में कोई भी दोस्त का फ़ोन आता है दहेज का, इन सब केसेस के बारे में, तो मैं हमेशा वो फ़ोन उठाता हूँ। तो मैं अभी ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग इसका बेनिफिट लें। आप पैसे के बारे में ना सोचें, नौकरी के बारे में ना सोचें, आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपने परिवार की मेंटल हेल्थ, अपने फिज़िकल हेल्थ और अपने परिवार की फिज़िकल हेल्थ के बारे में सोचें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उपनिषद का भी कोट डालूंगा, मैंने वो आपको पहले गेम थ्योरी के 6 पॉइंट भी बताए, और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको मुझे इसलिए सुनना चाहिए कि मैं कभी कोर्ट नहीं गया, मैं कभी वुमेन कमीशन के सामने मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, और मेरे अगेंस्ट वारंट निकले हुए थे, और मैंने अपने लोकेशन में अपने खर्चे पे जितना मेरा बजट था उस हिसाब से मैंने इस केस को ख़त्म किया है। तो मेरा केस एक सक्सेस रहा है। मैं आपको इन सब केसेस से, यदि आपके केस झूठे हैं, मतलब अगर आप पर केस झूठा हुआ है, तो मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ कि आप इन सब कचरों में से जल्दी निकलें, अच्छी तरह निकलें, और एक हैप्पी हेल्दी तरह से निकलें। और एंड में मैंने आपको आपकी हेल्थ की विशेस भी हैं मेरी तरफ से, और रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने कमेंट्स वगैरह इसमें डालें, एंड देन आई विल डेफिनेटली बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू यू। पर अगले वीडियो तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।